Please tell me if anybody doesn't see my screen. Everyone is able to see my screen? So in today's session, we'll start with the Python dictionary, Lambda functions, Python decorators, and problem solving. So in today's session, we'll go through all these sessions and all these parts in Python, all these topics. तो आपको जो भी कुछ कहीं प्रॉब्लम हो, just type your problem on chat. एंड आई होप आप सभी लोग कोऑपरेट करेंगे, आप सभी लोग कोडिंग करेंगे. जिन लोगों के पास मशीन है वो मशीन पे कोड करें, और जो लोग फोन पर यूज कर रहे हैं वो गूगल कोलैबोरेटरी का यूज करके वहां पर कोड करेंगे. ओके everyone, and I want answer from every student. I want answer from every student. Nobody will sit and keep being relaxed. ठीक है, सभी लोग कोड करेंगे, सभी लोग अपना कोड शेयर करेंगे. गलत सही वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन सभी लोग अपना कोडिंग करेंगे गूगल कोलैबोरेटरी पर या फिर अपनी मशीन या लैपी पर. सो आई होप कितने लोग स्टूडेंट्स आ गए हैं यहाँ पर. अभी 46 स्टूडेंट्स हैं. So I'm just going to lock my screen, the meeting, and let's start with the today's session. So first of all, पहले हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो हम लोग Python डिक्शनरी की बात कर रहे हैं. Python डिक्शनरी क्या है? Okay मैम, okay, I'll just check it out. Galaxy J6, I'm just removing from the session. You haven't changed your name. I'm just removing from the session. So let's start. Dictionary. So what is Python dictionary? Python dictionary is basically a Python data type and it is mutable in nature. ठीक है, Python dictionary क्या होती है? Python dictionary basically mutable nature की होती है, और mutable होने की वजह से आप इसके साइज को घटा बढ़ा सकते हैं. और प्लस यहाँ पर जो हम लोग एप्लीकेशन में यूज करते हैं डिक्शनरी को, वो एज अ की वैल्यू पेयर यूज करते हैं. तो दिस इज अ Python dictionary. So dictionary is a combination of key value pairing, as it is written over here. Dictionary क्या होती है? Dictionary is a Python mutable data type that uses the values in form of key value pairing. It is represented as curly braces inside their key and value. वो mention किया जाता है. ओके तो ये जो क्या कहते हैं Python dictionary है, इसका यूज हम लोग मेनली कई जगह पर यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ द जगह पर यूज किया जाता है. तो आई होप कि ये बहुत इजी है और आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं होती हैं, तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन माय कोलैबोरेटरी एंड कोलैबोरेटरी पर हम लोग काम करते हैं एंड वहीं पर हम लोग कोड करेंगे, और जहां पर चेंज करना होगा वहां पर हम लोग उसको चेंज करवा लेंगे. ओके, so let's start with the Google Collaboratory. I hope सभी लोगों ने ओपन कर रखी है अपनी Google Collaboratory. Is anybody here कि जिसने अभी Google Collaboratory को यूज नहीं किया है? कोई अभी ऐसा तो नहीं है? Type yes or no. So what is a dictionary?
if I say okay, Sakshi Dubey. Okay, Vikrant, no issues. You can use Sublime Text also. Okay, ma'am, I'm just opening the meeting for only 2 minutes. Tell her to join the meeting as fast as possible. So this is my dictionary. I'll just create an object of dictionary my dict equals to curly braces here, and I'll just put one column. This is Apple to Android, three Windows, and fourth BlackBerry. So this is my dictionary. This is my dictionary, and I want to print my dictionary over here. So I'll just put my dict and run it. So यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसको रन कराते हैं. And it is connecting now, initializing now, and yeah, now it is connected. So this is my dictionary. This is my complete dictionary. आप अगर कोलैबोरेटरी पे यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली my ऑब्जेक्ट लिख के आप उसको रन करा सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली रन कराना चाहें तो प्रिंट my dict, print print my dict. So this is my dictionary. Okay, so you can run like this also. तो ये हमारी डिक्शनरी हो गई. तो डिक्शनरी में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 कॉलन एप्पल लिखा है, 2 कॉलन एंड्रॉइड लिखा है, 3 कॉलन ब्लैकबेरी लिखा हुआ है. तो ये जो चीज लिखी हुई है ये बेसिकली क्या कर रही है, ये आपके डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर रही है. जहां पर ये क्या चीज है, बेसिकली यहाँ पर आपका जो यूज किया जा रहा है दैट इज दिस इज की, ओ सॉरी, दिस इज की, दिस इज द की, एंड दिस इज द वैल्यू. Ma'am, I'm just locking the meeting now. So this is the value. So की क्या है, ये सबसे पहली चीज लिखी होती है, ये हमारी की है, और यहाँ पर ये जो लिखा गया है दिस इज वैल्यू. ठीक है. तो जब भी हम लोग कोई डिक्शनरी बनाते हैं, पाइथन डिक्शनरी क्रिएट करते हैं व्हाटसोएवर, तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डिक्शनरी का यूज होता है तो वो हमेशा की वैल्यू पेयरिंग में होता है. ठीक है. तो की वैल्यू पेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हो तो रिपोर्ट कार्ड भी कुछ ऐसा ही बना होता है, डिक्शनरी का ही फॉर्मेट होता है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, आपके मार्क्स दिए होते हैं इस तरीके से. ठीक है. यहाँ पर आपका सब्जेक्ट लिखा होता है, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कंप्यूटर सी लैंग्वेज जावा. ठीक है. यहाँ पर आपका DBMS. ठीक है. तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म के नंबर मिले, सेकेंड टर्म के मिले, फाइनल मिले. ठीक है. फाइनल का मिला. ठीक. तो यहाँ पर अलग अलग नंबर्स मिलते जा रहे हैं. तो ये जो हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है ये की वैल्यू पेयरिंग हो रही है. ठीक है. जैसे आपको यहाँ पर 70 आया, यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 84 आया. ठीक है. यहाँ पर 92 आया. ठीक है. यहाँ पर 72 आया, यहाँ पर 66 आया, कुछ भी इस तरीके का फॉर्मेशन बना हुआ है. DB2 में आपका मान लीजिए 45 आया. ठीक है. 30 आया, 78 आया, इस तरीके से. तो ये हमारी एक डिक्शनरी का फॉर्मेट बन गया. तो ये जो हमारे पास है दिस इज द की एंड दीज आर द वैल्यूज. ये सारी क्या है हमारी, ये हमारी वैल्यूज है. ठीक है. तो अगर हमें कोई भी वैल्यू पता करनी है तो हमें इस की के हेल्प से पता करनी होगी. ठीक है. तो अगर हमारे पास की है तो हम उससे करस्पॉन्डिंग कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Is that clear everyone? Okay guys,
सो नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने डिक्शनरी को यूज करना है और इस डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी चीजें आप ऐड करवा सकते हो, वट जो भी आपको सही लगता है वो आप डिक्शनरी के थ्रू ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट चेंजिंग समथिंग ओवर हियर। सपोज यहाँ पर हमें एक लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर हमने कॉमा किया और यहाँ पर हमने 5 दे दिया और कॉलन करके यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट कर दी 1, 2, 3, 4, 5। So here it is my list. So I can put a list inside a dictionary also. ठीक है, एक लिस्ट को हम अपनी डिक्शनरी के अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर अगर हम कोई भी टपल लेना चाहते हैं तो टपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कॉलन लिया और आई एम जस्ट पुटिंग x, y, z like this. So I am just putting my list tuple inside a dictionary. So अगर हम इसको अब रन कराते हैं तो भी हमारी ये क्या दिखा रहा है, ये हमारी टपल इनसाइड द डिक्शनरी दिखा रहा है। तो अगर आप समझिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो हमारे पास लिस्ट बनी है दिस इज अगेन अ वैल्यू। ठीक, यहाँ पर ये जो टपल बनी है ये भी हमारी क्या वैल्यू है। ठीक, और 5 और 6 जो बने हुए हैं ये हमारे क्या है, कीज हैं। Is that clear? Yes or no? Is that clear to everyone? तो आई होप कि आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अगर मान लेते हैं कि जैसे हमें कोई भी पर्टिकुलर किसी डेटा को शो करवाना है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा को शो करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे? किसी भी पर्टिकुलर डेटा को शो करवाना है तो वो कैसे करेंगे? तो आई जस्ट हाइड दिस वन, और मुझे केवल एक पर्टिकुलर का डेटा शो करवाना है, तो आई जस्ट पुट प्रिंट एंड आई राइट माई डिक्ट, और इसके अंदर हमें जैसे लिखा कि ओके सॉरी आई जस्ट गिव 6, तो 6 का डेटा हमें दिखा दो, तो 6 के अंदर जो पड़ा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जिस की को हमने इनपुट किया उस की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमें यहाँ विजिबल हो जाएगी। ठीक है, यही काम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसी काम को हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम गेट मेथड लगा सकते हैं। तो dict डॉट गेट, तो गेट मेथड के अंदर अगर हमने दिया, जैसे मान लेते हैं 5 दे दिया या 4 दे दिया, तो 4 अगर हम देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देगा, वो ब्लैकबेरी शो कर दे रहा है। Is that clear everyone? Is that clear? Yes or no? Please type yes or no. Okay. अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमें और चेंजेस करने हैं, सपोज I want to print all the keys from here, so I'll just put write my dict dot keys. So keys, what keys are the functions in the dictionary that are used with dictionary. Sorry. Yeah. So here it is all the keys which I want to represent. तो जितनी भी keys होंगी आपकी डिक्शनरी के अंदर वो सारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको वैल्यूज निकालनी है तो यहाँ पर आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज के लिए प्रिंट आपने किया, यहाँ पर माई डिक्ट लिखा, माई डिक्ट डॉट वैल्यूज। ओके, तो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पर। अगर हमने यहाँ पर इसको रन कराया तो इट विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज एज यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आप इस तरीके से वैल्यूज दिखा सकते हो उसकी। सभी को दिख रहा है? ठीक है, is that clear to everyone? तो अब कुछ फंक्शंस हमें यहाँ पर यूज करने हैं जिसका हम लोग आगे यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग डिक्शनरीज हमने बना रखी है।
अब यहाँ पर एक फंक्शन होता है, तो आप लोग इसको अप्लाई करके देखते चलो साथ साथ में। आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी बनाते जाइए और इसको रन करा के देखते जाओ सभी लोग प्लीज। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको अप्लाई करके देखते जाना है। क्लियर है? तो जैसे हमने यहाँ पर डिक्ट लिखा, तो यहाँ पर डिक्ट क्या है, डिक्ट हमारा एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी क्रिएट करके देती है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा माई डिक्ट इज इक्वल्स टू डिक्ट ब्रैकेट के अंदर इंग्लिश कॉलन 60 हिंदी कॉलन 70। तो दिस इज क्रिएटिंग माई डिक्शनरी। इज दैट क्लियर? फटाफट जल्दी से बनाइए और बताते जाइए हाँ हो गया, यस। जल्दी से बनाओ और टाइप यस। Once you're done, just type yes. Done. Okay, Shubham. Okay, good. Good, Shubham. Very good. Okay, Vikrant. Anyone else has done the this dictionary, creating a dictionary? Anyone else? Shruti, प्रतिभा, संस्कृति, शिवांगी, आप लोगों ने किया? साक्षी, हैव यू ट्राइड? ओके साक्षी, ओके ओके प्रतिभा, ओके संस्कृति। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ पर इतना। अब अगर हम यहाँ पर डिक्शनरी मान के चलते हैं कि हमें अगर डिक्शनरी बनानी है, तो अगर हम डिक्शनरी बनाना चाहें तो जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके से डिक्शनरी क्रिएट करें। नॉट नेसेसरी कि हमें यही तरीका यूज करना है। हम इस तरीके से भी डिक्शनरी बना सकते हैं जिसके अंदर एक लिस्ट और लिस्ट के अंदर टपल क्रिएट करी है, ठीक है, तो वो कॉमा सेपरेटेड कर दिए और उसके थ्रू भी हम अपनी डिक्शनरी बना सकते हैं। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व रन दिस टाइप। इसको बना के देखो सभी लोग। इस वाले को बना के देखिएगा, ये वाला। ट्राई टू रन दिस। इस वाले को रन करा के देखो फटाफट, जल्दी जल्दी से बनाइए और करिए। विक्रांत आउटपुट आ रहा है? विक्रांत आउटपुट आ रहा है? गाइस आप लोगों को स्लाइड्स मिल गई हैं पिछले 2 सेशंस की। पिछले सेशंस की आपको स्लाइड्स मिल गई हैं सभी लोगों को गूगल क्लासरूम पर। हैव यू विजिटेड योर गूगल क्लासरूम? प्रतिभा, ओके, शिवांगी, सभी लोगों को गूगल क्लासरूम पर स्लाइड्स मिल गई हैं? ओके गाइस, आई विल शेयर ऑल दिस कंटेंट। ये सारा कंटेंट हम आपको गूगल पे शेयर कर देंगे क्लासरूम पर, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। ओके, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग कि यहाँ पर ये किस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आप गेट करना चाहते हो तो गेट कैसे करेंगे, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं कि अगर हम इस तरीके से रन करा के देखें, तो ट्राई टू रन दिस टाइप। आप इस तरीके से बनाओ। रक्षा, कहाँ पर नेटवर्क इश्यू हो रहा है? गाइस एक डिक्शनरी आप लोग बना लीजिएगा, उसके अंदर एक ऐसा आइटम रखिए जो आपके उस डिक्शनरी में ना हो।
समथिंग लाइक जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये डिक्शनरी आपने बनाई है या इस तरीके से एक डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर Z आइटम आपके पास नहीं है। तो जब Z आइटम नहीं है तो एक बार इसको रन करा के देखिए और इसको रन करा के देखिए कि आपका आउटपुट क्या आता है। सभी लोग ट्राई करके देखें कि अगर आपके पास ये वाली डिक्शनरी बनी हुई है, ये वाली डिक्शनरी बनी हुई है, उसके अंदर आप Z को रन करा के देखिए तो आपका आउटपुट क्या आता है वो बताइए। जब आप ये वाला रन करा रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या आ रहा है? जस्ट टेल मी। दिस वन इसको रन करा के देखो आपका आउटपुट क्या आ रहा है। फटाफट जल्दी से टाइप करिए। ओके, ऊपर वाला तो आपको नन दे रहा होगा, नीचे वाला अगर आपने ऊपर वाला रन कराया होगा तो ऊपर वाला तो नन दे रहा होगा, लेकिन नीचे वाला अगर आप रन कराएंगे तो इट विल शो एन की एरर। इट विल शो एंड की एरर। यस योगेन। रक्षा, हैव यू ट्राइड? तो ये की एरर का मतलब क्या है? की एरर का मतलब ये है कि जिस की को आप कॉल करना चाह रहे हो वो की आपकी इस डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं। तो जब आप उस डिक्शनरी के अंदर वो की है ही नहीं तो वो दिखाएगा क्या? इस वजह से उसने क्या रिजल्ट कर दिया? एक की एरर दिखा दी है। इज दैट क्लियर? या की एरर जेड, या ऑफ कोर्स। यस प्रकार, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। सिमिलरली एक नई डिक्शनरी बनाते हैं न्यू डिक्ट के नाम से, और उसके अंदर हमने एक नाम एक डिक्शनरी क्रिएट करी इस तरीके से, ठीक है। और इस डिक्शनरी के अंदर हमने क्या किया, इस डिक्शनरी को पहले प्रिंट कराया। तो आप अपनी तरफ से कोई भी डिक्शनरी बना लीजिए और इस तरीके से आप डेटा कुछ इनपुट करो। फटाफट जल्दी से आप ही लोग करिए, हम केवल आपको समझाते जा रहे हैं। हो गया? रन हो गया? रन हुआ नहीं? तो आपने डिक्शनरी बना ली है। अब डिक्शनरी बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको रन कराना है। तो जब आप डिक्शनरी बना ले उसको एक बार प्रिंट करा लीजिए, फिर उसके नेम को चेंज कर दीजिएगा। यहाँ पर उसका नेम चेंज करो। तो यहाँ पर आपने उसमें क्या करा है, अपडेट का यूज किया है। तो आप अपने डिक्शनरी को अपडेट कर रहे हो। तो पहले आप नेम चेंज करें, फिर उसको प्रिंट करें, और एक बार उसका एज चेंज करें फिर प्रिंट करें, या फिर डायरेक्टली दोनों को एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे करके भी। तो आप दोनों को एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अपडेटेड वैल्यूज ये दिखाएगा। प्रिंट करें फटाफट जल्दी से। आउटपुट क्या दिखा रहा है, फटाफट जल्दी से बताएं। यस योगेन, अपडेट हो गया। आपका नाम और एज चेंज हो गई होगी। यस और नो?
सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी और बनाई है, यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी करी रिजल्ट के नाम से, और रिजल्ट के अंदर हमें यहाँ पर क्या मिला, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस तरीके से हमें कीज मिल गई हैं। और इन कीज के थ्रू हमने क्या किया, पहले रिजल्ट दिखाया, मतलब अपनी डिक्शनरी को प्रिंट किया, फिर एक आइटम हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो पॉप आइटम, तो पॉप आइटम क्या करेगा, पॉप आइटम बेसिकली आपके ये लास्ट वाले एलिमेंट को या लास्ट वाला जो आइटम है वो डिक्शनरी में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करके देखें। या साक्षी क्या हुआ? यस साक्षी, व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओके जागृति मैम, मैम आई विल अलाउ ओनली 2 minutes, only 2 minutes. यस साक्षी, अच्छा आपके स्क्रीन ब्लर आ रही है, अभी बताओ, अभी सही है? Sakshi, now it is clear to everyone? Pratibha, now it is clear? Everyone can see my screen clearly? So this is how you can use this one. तो अगर आपने यहाँ पर पॉप आइटम चलाया, तो पॉप आइटम अगर आप रन करा रहे हो तो क्या हो रहा है, लास्ट वाला आइटम देखा होगा आपने, यहाँ से जो लास्ट आइटम आपने साइंस लिखा होगा, वो साइंस वाला आइटम आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। यस और नो? है ना? तो एक्चुअल में वो आपको दिखता है, मतलब ये जो पॉप आइटम करता है, ये पॉप आइटम बेसिकली क्या करता है, टेम्परेरीली आपके उस आइटम को क्या कर देता है, गायब कर देता है। एक्चुअल में वो लिस्ट में से गायब नहीं होता, सॉरी डिक्शनरी में से गायब नहीं होता, वो टेम्परेरीली आपका वहां पर विजिबल नहीं होगा, बट एक्चुअल में आपका वो डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर आपको पूरी डिक्शनरी उड़ा देनी है तो आप उसको डेल करके क्या कर सकते हैं, पूरी डिक्शनरी को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूरी डिक्शनरी हटाना चाहते हैं तो आप पूरी डिक्शनरी को डेल कीवर्ड से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हमें कुछ फंक्शंस देखने हैं, तो इन फंक्शंस को अप्लाई करके देखिए। यहाँ पर ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, फटाफट जल्दी से इनको नोट कर लो, और अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो आई विल शेयर ऑल दिस कंटेंट टू यू ऑन गूगल क्लासरूम, यू कैन यूज ऑल दीज फंक्शंस। ठीक है, तो आप एक जो डिक्शनरी बनाई हुई है या एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है, उसमें ये सारे फंक्शंस को अप्लाई करके देख लीजिए। फटाफट जल्दी से करिए, फिर बताइए। जो जो आपका आउटपुट आ रहा है वो शेयर करते जाओ सभी के साथ में, सभी लोग। सभी लोग शेयर करें फटाफट जल्दी से, अपना जो भी कोड आप बना रहे हो उस कोड को शेयर करो। ये तीनों फंक्शंस रन करा के देखिए। वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी। और सभी लोग अपना आउटपुट बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्या आ रहा है आउटपुट में। पहला वाला आउटपुट आपको क्या दे रहा है, जिसका रन हो गया पहला वाला आउटपुट क्या आ रहा है बताएं। जो आपने डिक्शनरी बनाई है माई डिक्ट के नाम से, उसमें से आउटपुट क्या आ रहा है?
या ऑल द नेम ऑफ वैल्यूज, करेक्ट। ठीक है, यानी कि एंड्रॉइड, एप्पल, ब्लैकबेरी, विंडोज, ये सारे शो कर रहा होगा। यस विक्रांत। फिर कीज को अगर रन कराते तो कीज क्या दिखा रहा है? या 1 2 3 4 6 तक होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से विक्रांत। आई थिंक 6 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 तक आना चाहिए। यस दीपक, 1 to 6 करेक्ट। यस प्रतिभा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो आपने कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया, तो पॉप करके आपने कुछ एलिमेंट्स को रिमूव किया है। ओके ओके, नो इश्यूज। तो यहाँ पर आपने देखो फंक्शन यूज किया, पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन से क्या किया आपने, जो भी आप की यहाँ पर दोगे, ये बेसिकली क्या है, ये आपकी की है। तो हियर इट इज द की। तो जिस की को आप यहाँ मेंशन कर देंगे, वो आइटम आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो वो आपको डिक्शनरी में नहीं दिखाई देगा। तो पॉप करके आप उस डिक्शनरी में से उस आइटम्स को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ साक्षी, रक्षा? व्हाट द प्रॉब्लम, बताओ। देखो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर हमारे पास एक पॉप फंक्शन होता है। पॉप फंक्शन क्या करता है, मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट बनी है, सपोज यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई, सपोज माई लिस्ट के नाम से, माई डिक्ट के नाम से क्रिएट करते हैं। तो माई अंडरस्कोर डिक्ट क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर हमने माई अंडरस्कोर डिक्ट, और इसके अंदर हमने कुछ भी वो बना दिए, कोई भी डिक्शनरी बना दी है मान लीजिए, ठीक है। सपोज इंग्लिश बनाई, तो ENGLISH या ENG, या पहली वाली ले लेते हैं, पहला वाला जो बनाया था, पहला 1 कॉलन बनाया था। तो 1 कॉलन था एंड्रॉइड, फिर कॉपी कॉमा 2 किया एप्पल, फिर तीसरा मान लेते हैं यहाँ पर हमने डिक्शनरी बना दी, तो कॉलन ये 1 2 3। इस तरीके से हमने डिक्शनरी क्रिएट करी। ओके रक्षा, ये तो समझ में आया आपको इतना? यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी बनाई है। अब अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम ये जो थर्ड वाला इंडेक्स है, इसकी ये वाली लिस्ट गायब कर दें, मतलब ये लिस्ट नहीं प्रिंट होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पर पॉप की जगह पर 3 लिख देंगे। तो जैसे ही आप पॉप की जगह पर 3 लिखोगे, ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट यहाँ से गायब हो जाएगा। या अगर मान लेते हैं ये नहीं हटाना है, सपोज यहाँ पर हमारे पास एक 4 और बना हुआ है, इसके आगे हमने कॉलम बना के एक और चीज लिखी है, X, Y। यहाँ पर X, Y लिखा है सपोज। तो अगर हमें यहाँ से पॉप करना है थर्ड वाले को, तो ऑटोमेटिकली थर्ड वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। नाउ इट इज क्लियर रक्षा? ठीक है। तो क्या होगा, यहां से आपका ये जो थर्ड वाला एलिमेंट है, ये यहां से गायब हो जाएगा, और ये वाला इसकी जगह पर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? अब आगे चलते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है, दैट इज फ्रॉम कीज। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक लिस्ट बनी हुई है, मार्क्स के नाम से हमने बना रखी है, कुछ भी बना रखी है। तो जो भी डिक्शनरी आ रही है, कोई भी डिक्शनरी हमने क्रिएट करी, उस डिक्शनरी के अंदर फ्रॉम कीज, तो ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है। फ्रॉम कीज हमने यूज किया, और मतलब ये एक सीक्वेंस हो जाएगी, दिस इज अ सीक्वेंस। तो उसमें से हमने x, y जो बनाया, उस x, y में हमें वैल्यू क्या इनिशियलाइज करनी है, 0।
ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जहां जहां पर x है और जहां जहां पर y है उन कीज में वो वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कीज के अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए। क्लियर एवरीवन? गाइस टेल मी, विक्रांत, योगेंद्र, साक्षी, प्रतिभा, रक्षा, बताओ आप लोगों का हुआ ये? गाइस आप लोगों को पिछले सेशंस की यूट्यूब का लिंक मिल गया है सभी लोगों का? गाइस आप लोग यूनिवर्सल उज्जैन पर जाके यूट्यूब चैनल है, वहां पर वीडियो भी देख सकते हैं। अदरवाइज आई विल शेयर यू ऑन योर क्लासरूम। ठीक है, तो आप लोग यूनिवर्सल उज्जैन टाइप करके यूट्यूब पर अपना कोई भी सेशन वहां से व्यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सेशन जो आपका पिछला अटेंडेड नहीं है तो आप उसको वहां से व्यू कर सकते हैं। आई हैव अपलोडेड ऑल द वीडियोस विच वाज द प्रीवियस सेशंस, वो वहां पर हमने अपलोड कर दिया है। एंड आल्सो आई शेयर ऑल द वीडियो लिंक्स विद यू ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, आपके असाइनमेंट्स भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। पीपीटीज आपको मिल गई हैं, आपके असाइनमेंट्स आपको ही जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर लूप आता है। तो ये लूप आपका जो दिया गया है फॉर के कॉमा बी इन मार्क्स डॉट आइटम्स। तो आइटम्स क्या करता है, आइटम्स आपकी पूरी लिस्ट दिखाता है। यानी कि जो भी आपने क्या कहते हैं डिक्शनरी बनाई है, उस डिक्शनरी के अंदर जितने भी आइटम्स है अलॉन्ग विद की वैल्यू पेयरिंग, वो पूरे के पूरे की वैल्यू पेयर के साथ में इन अ फॉर्मेट ऑफ लिस्ट वो आपको आइटम्स दिखाता है। तो अगर आप उससे करस्पॉन्डिंग की वैल्यू चलाते हो, प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो आप इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। तो ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम, ये छोटा सा कोड रन कराओ, देखो क्या आता है आंसर। हैव यू डन विक्रांत, साक्षी, शुभम, प्रतिभा? रक्षा, योगेंद्र, सभी लोगों ने किया? ट्राई किया इसी को? रितिका, ओके रितिका। तो क्या प्रिंट हो रहा है आपका, यहाँ पर बताएं क्या प्रिंट हो रहा है आपका, आउटपुट क्या प्रिंट हो रहा है? विक्रांत आउटपुट क्या आ रहा है? प्रतिभा बताइए आउटपुट क्या आ रहा है? रक्षा आउटपुट बताइए क्या आ रहा है? रितिका आउटपुट बताओ, योगेंद्र, शुभम आउटपुट बताएं क्या आ रहा है?
यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। यस रितिका, विक्रांत सही है। की वन वैल्यू जीरो, की वन या एक्स का वहां पर आ जाएगा। यस रितिका, एक्स की इक्वल्स टू एक्स एंड वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। यस राइट। ठीक है योगेन। तो अब आपको इतना समझ में आ गया कि डिक्शनरी कैसे यूज की जाती है, आई होप। ओके प्रतिभा, ठीक है। तो डिक्शनरी समझ में आ गया कैसे यूज करना है, यस और नो? यस और नो, प्लीज टेल मी। ओके, so here it is your question, a simple question you have to try कि यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और उस प्रोग्राम को आपको आउटपुट प्रिंट करा के बताना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ अ स्टूडेंट एज इट्स रिजल्ट परफॉर्म द वैल्यू फॉलोइंग। ठीक है, आपको एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें उसका रिजल्ट प्रिंट करना है और उसमें ये फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जल्दी से बनाइए एक डिक्शनरी एक स्टूडेंट की, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स डालिएगा, सब्जेक्ट्स के कुछ मार्क्स डालिएगा और कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से कम रखिएगा। कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स को 60 से कम रखिएगा और फिर उसको ट्राई करिए, सॉल्व करके बताइए क्वेश्चन फटाफट जल्दी से। सभी लोग ट्राई करेंगे? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन। I want the answer from everyone. Each student have to give me answer.
Jagrati ma'am, please allow. Payal is logged out. Should I allow her to log in? Jagrati ma'am, can you hear me? Yes ma'am, meeting is open now. ओके, किस किस लोगों ने क्वेश्चन कर लिया ये वाला? किन किन लोगों ने कर लिया? प्लीज अपना कोड शेयर करें सभी लोग। विक्रांत, योगेंद्र, साक्षी, प्रतिभा, श्रुति, रितिका, विशाल, शुभम, बताएं किस किस लोगों ने अपना कोड बना लिया है? प्लीज शेयर करें जल्दी से। जिन लोगों का हो गया है वो अपना कोड शेयर करें। मेक इट फास्ट। तो I hope कि आप लोगों ने कर लिया होगा। I'll show you the code किस तरीके से बनाना है। This is the code. ये आपका कोड है और आप इसको बनाना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इस तरीके की एक लिस्ट बनी हुई है। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसको जब हम प्रिंट करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमने रिजल्ट प्रिंट कराया पहले, फिर उसके बाद वैल्यूज प्रिंट कराई, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, उसकी कीज प्रिंट कराई। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, इस जगह पर लेस मार्क्स इज इक्वल टू के फॉर के कॉमा वी इन रिजल्ट डॉट आइटम्स। तो जो हमने रिजल्ट बनाया, रिजल्ट की डिक्शनरी बनाई, उसमें से सारे आइटम्स निकाले और सारे आइटम्स निकालने के बाद उसकी की वैल्यू पेयरिंग करी है, ठीक है? तो जो की है उसमें से हमने सारे कीज निकाले, मतलब सारी कीज को गेट किया। दिस इज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन,
ठीक है, यहाँ पर हमने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाया और उसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर के सेट किया, मतलब वो सारी कीज निकालो जहां पर वैल्यू की जो वैल्यू होती है, मतलब जिनके मार्क्स, मतलब जिन सब्जेक्ट्स के मार्क्स 60 से कम है उनको, उनके कीज को एक लिस्ट में डाल दो। तो यहाँ पर आपका जैसे हिंदी है, मैथ्स है, सोशल साइंस है, इन सारे तीनों सब्जेक्ट्स को एक लिस्ट में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उन सबको एक एक करके पॉप कर दिया गया और पॉप करने के बाद फिर से हमने क्या किया, लिस्ट को प्रिंट कराया। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी मैथ्स सब्जेक्ट था, मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर हमने मार्क्स को अपडेट किया, 85.5 किया और फिर से हमने अपनी लिस्ट को यानी कि डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? ट्राई करिए, देखिए आंसर आ रहा है सभी लोगों का। Yes, so again, what you are saying? What is the use of F? F is a kind of format. F जो होता है वो फॉर्मेट के लिए यूज किया जाता है, फॉर्मेटिंग करने के लिए। मतलब अगर हमें रिजल्ट के साथ में, मैसेज के साथ में कोई कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करना है तो वो आप इस तरीके से फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, F इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग। स्क्रीन नहीं दिख रही है ठीक से? ओके, now it is visible. शुभम, विक्रांत डन? विक्रांत डन हो गया? सभी लोगों का हो गया? सभी लोगों ने कर लिया? बाकी लोग, साक्षी, प्रतिभा, रक्षा, श्रुति, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? विकास, विशाल, बेटा आप ही लोगों के लिए कराया जा रहा है ये सब, तो आप ही लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ये बताइए। आप ही लोगों के लिए है ये। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन रन हो जाता है तो जस्ट डू इन्फॉर्म कि हाँ कर लिया, हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या है? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली जैसे हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था,
उसी तरीके से डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है, उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंस कर सकते हैं। यानी कि कोई भी डिक्शनरी अगर हमें क्रिएट करनी है तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी की वैल्यू पेयरिंग एवरी टाइम, जस्ट राइट अ सिंगल लाइन एंड डिक्शनरी विल बी क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने स्क्वायर्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर हमने लिख दिया की। तो जो की है हमारी वो हमने यहाँ पर मेंशन करी और उसके हिसाब से जो वैल्यू होनी चाहिए वो हर बार उसकी वैल्यू पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। तो जो करंट की है उसका स्क्वायर निकाला और वो लूप चलता रहेगा 1 से लेकर 10 तक की। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक की सारी जो स्क्वायर्स होते हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? फटाफट जल्दी से बनाइए। और उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4 इन स्क्वायर्स। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ट्रू एंड फॉल्स बताएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया है तो ये चेक किया कि क्या 4 आपके स्क्वायर्स वाली डिक्शनरी में है कि नहीं है। अगर 4 आपकी उस स्क्वायर डिक्शनरी में है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जैसे 11025 दिया हुआ है तो 11025 इज नॉट प्रेजेंट इन द स्क्वायर, देयरफॉर इट विल रिजल्ट फॉल्स। Is that clear, everyone? Is that clear, everyone? रन हो गया, ट्राई किया, फटाफट जल्दी से रन कराओ। ओके श्रुति, ओके श्रुति, दीपक, योगेंद्र, वेरी गुड। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर डिक्शनरी पार्ट। यस यस यस, गुड 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 प्रतिभा, वेरी गुड, शाबाश। तो यहां तक हमारा डिक्शनरी वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट अपना पार्ट आता है लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या है? लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी होगी तो जावा के अंदर भी एक टर्म होता है लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंडर में आता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को फंक्शनल प्रोग्रामिंग पता है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग पता है ना, फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिस तरीके से जावा में होती है उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इस जगह पर अगर आप देखो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पर एक फंक्शन बना हुआ दिख रहा है जिसके अंदर x की वैल्यू है। फिर उसी के अंदर हमने नेस्टेड फंक्शन एक और बनाया जिसमें हमने y लिया है और y को यूज किया एज एन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर x एज एन आर्ग्यूमेंट है और यहाँ पर y एज एन आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर रिटर्न कराया x इंटू वाई। तो जो आपका x इंटू वाई है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर आपने प्रिंट कराया फन टू 4। तो ये जो 4 है वो कहाँ चला गया, यहाँ पर, और इस जगह पर ये जो 10 था वो कहाँ आ गया, यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आउटपुट आपको किससे मिल रहा है? आउटपुट आपको इस फंक्शन से मिल रहा है। तो ये वाला फंक्शन कहाँ गया, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन कहाँ चला गया, दिस वन। ये जो फंक्शन बना हुआ है ये कहां चला गया, कोई बताएगा कहां चला गया? एनीवन वुड लाइक टू ट्राई? ये फंक्शन कहां गया?
आई एम सेइंग कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एक्स, ठीक है, और उसके अंदर हमने आर्गुमेंट दे दिया, तो यहाँ पर फंक्शन 1 बनाया और उसके अंदर आर्गुमेंट दिया और यहाँ पर हमने उसकी कॉलिंग करी। इज दैट ओके? तो ये जो 10 है वो हमारा कहाँ पहुंचा, वो यहाँ पर आया इस जगह पर। क्लियर? यस और नो? कॉलिंग करते समय जो वैल्यू थी वो यहाँ पहुंची। फिर उसके बाद हमारा फंक्शन दूसरा बना और वहां पर हमने y रखा हुआ है, और ये जो fun2 बनाया है इसमें जो 4 है वो कहाँ पहुंचा, वो यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या रिटर्न किया, x इंटू वाई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, दोनों को। क्लियर? दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू 10 कितना आंसर आएगा, 40। तो जो आपका रिटर्न हो रहा था वो यहां से हमने रिटर्न करवा दिया। लेकिन जब ये रिटर्न कराया तो रिटर्न हमारा कहाँ हो रहा है, रिटर्न तो कहीं हो ही नहीं रहा है, केवल ये प्रिंट कर रहा है, जबकि कॉलिंग तो फंक्शन की इससे हो रही है। इज दैट यस और नो? तो ये वाला फंक्शन गया कहाँ एक्चुअल में, ये वाला फंक्शन गया कहाँ? कोई बताएगा? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? रैंडम गेसेस? ये जो फंक्शंस होते हैं, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, ये जो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस। ये जो फंक्शंस बने होते हैं इन फंक्शंस को कहा जाता है एनोनिमस फंक्शंस। एनोनिमस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनोनिमस? व्हाट इज मीनिंग ऑफ एनोनिमस? उल्टे नहीं होता बेटा। शिवांगी इज सेइंग राइट, हैविंग नो नेम, एग्जैक्टली, अनडिफाइंड, अननोन। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे फंक्शन जिनका कोई नाम नहीं होता लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इनका कोई हमें नाम नहीं दिख रहा है, कॉलिंग करते समय कहीं कोई नाम नहीं दिख रहा, यहाँ पर जो नाम दिख रहा है वो fun1 का दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी अपना आउटपुट दिखा रहा है। तो जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी अपना सिग्निफिकेंस शो करती हैं, ऐसी चीजें क्या होती हैं, एनोनिमस कहलाती हैं। जैसे भगवान होते हैं, भगवान हमें दिखाई नहीं देते लेकिन अपनी एनर्जी, अपने हमारी विशेष को पूरा कर देते हैं। तो वो क्या एनोनिमस है, मतलब हमारे सामने नहीं है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन हमारे सामने नहीं आ रहे, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को एनोनिमस फंक्शंस कहा जाता है, या इस तरह का बिहेवियर को एनोनिमस बिहेवियर कहलाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग जब फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं तो वहां पर हम लैम्डा एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, लैम्डा एक कीवर्ड होता है जो अपने पास क्या करता है, ये चीज रखता है, देखो आई शो यू। तो लैम्डा क्या होता है, सॉरी, लैम्डा क्या है, लैम्डा एक बेसिकली कीवर्ड है जिसके पास आर्ग्यूमेंट होते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट होता है और उस आर्ग्यूमेंट के साथ में आपको कुछ एक्सप्रेशन देना होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉलन लगा के हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या दिया, उसका कुछ एक्सप्रेशन दिया, मतलब जो उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने फन नाम से कोई फंक्शन बनाया और यहाँ पर हमने उस फंक्शन को यूज किया। ठीक है, और अब जो लैम्डा एक्सप्रेशन होगा वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स को यूज करेगा और उसके हिसाब से एक्सप्रेशन रन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं वो वेरियस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वेरियस नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन जो होता है वो केवल एक ही होगा, ओनली वन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन हमेशा एक ही होता है। तो अब हम जब इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया और इसको हमने प्रिंट स्टेटमेंट के डाला अंदर। तो यहाँ पर हमने इसको किया प्रिंट और यहाँ पर हमने फंक्शन को कुछ भी दे दिया, मान लीजिए 2 आर्ग्यूमेंट या जो भी आर्ग्यूमेंट देने थे वो हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मेंशन कर दिए। ठीक है, ये हमने आर्ग्यूमेंट मेंशन कर दिए। तो अब क्या होगा, जो भी आर्ग्यूमेंट आपने पास किया वो आर्ग्यूमेंट आपका यहाँ पहुंचेगा, फिर उसका एक्सप्रेशन रन करेगा और जो आउटपुट होगा वो आपका यहाँ से प्रिंट हो जाएगा।
इज दैट क्लियर एवरीवन? आपको स्लाइड मिल जाएगी, स्लाइड के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, जस्ट एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग ओवर हियर। आपको स्लाइड्स के अंदर सब कुछ मिल जाएगा, स्लाइड्स के अंदर सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है? तो जस्ट गो थ्रू द स्लाइड्स। तो यहां पर ये लैम्डा एक्सप्रेशन बनाया, तो यहां पर हमने एक फन बनाया, फन के अंदर x, y लिखा। तो ये हमारे दोनों आर्ग्यूमेंट्स हो गए, दिस इज आवर आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक। और ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या बना हुआ है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो आपका x और y है, यानी कि 4 और 2, वो 4 और 2 यहां पर आएगा, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है, इज दैट ओके? रन हो रहा है सभी का? रन करा के देखिए एक बार सभी को, सभी लोग एक बार रन करा के देखो आप जल्दी से, फटाफट जल्दी से। यस यस यस, करेक्ट, आंसर इज 6। प्रतिभा, यू आर सेइंग राइट। विक्रांत, आंसर 6 या सेम आंसर है? नीचे वाला रन करा के देखा, नीचे वाला क्या आंसर आ रहा है? विक्रांत, श्रुति, योगेंद्र, विशाल, या 149 करेक्ट आंसर। तो 149 कैसे आया ये बता सकते हैं? रितिका, कैसे आया 149? शुभम, यस यू आर राइट। विक्रांत, यू आर ऑल्सो राइट। तो अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये बेसिकली जो रन कर रहा है वो बेसिकली किस तरीके से रन कर रहा है, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कैसे क्या चीज हो रही है, कोई बताएगा? विक्रांत, यू ट्राई टू आंसर, कैसे हो रहा है ये? एग्जीक्यूशन बता सकते हो उसका? Anybody else? Anybody else? Shubham, you are right. Yes, yes, yes. Vishal, Shubham, Shruti, Pratibha, Utkarsh is not available to join. Shubhanshu, just ask to the coordinator. Ask you the coordinator. You should ask the coordinator, then I allow to him. Yes, Raksha, that's good answer. That's good answer. But can anybody tell me how this comes? Yes, yes, yes. So Sakshi, you are right. बात सही है, लेकिन ये किस तरीके से हो रहा है ये बताएंगे? आपका आंसर सही है, दैट्स ओके। ओके शिवांगी, यस, बट एक चीज आप मिस कर गए, अभी भी आप एक चीज मिस कर गए। List is created. So how list is created, Yogen? Now you are right. How list is created? How list is created? Can anybody tell me? ना 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 विक्रांत, यहां पर देखो, ये हमने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिखा है। यहां पर हमारे पास एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना हुआ है। याद है कल हम लोगों ने बताया था, सैटरडे को डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी लिस्ट बनाना चाहते हैं उसके अंदर केवल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर डिक्शनरी का कॉम्प्रिहेंशन किया वैसे ही लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बना है। तो यहां से जब हम लिस्ट पास कर रहे हैं तो एक एक एलिमेंट आपका यहां पर पहुंचा तो वो लिस्ट आइटम में यहां है, यानी कि 1 2 3 जो आपका पहुंचा वो यहां पर आया लिस्ट के अंदर, और फिर एक एक इंडेक्स का आइटम यहां पहुंच रहा है। ठीक है, एक एक आइटम यहां पर पहुंच रहा है इस जगह पर।
ठीक, अब जब लिस्ट ने इटरेट करना शुरू किया तो हमने आपको बताया था कि फॉर लूप में हमेशा इटरेबल्स का यूज किया जाता है। कोई भी इटरेटर होता है जो म्यूटेबल टाइप का होना चाहिए, तो वो इटरेटर आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। हमने रेंज नहीं यूज किया, लिस्ट यूज किया है। तो यहाँ पर इटरेटर जो है वो एक एक करके सारे एलिमेंट्स को निकालता जाएगा, उसका स्क्वायर करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से आउटपुट प्रिंट होगा। दैट इज व्हाई यू आर प्रिंटिंग 1,4,9। इज दैट ओके? इज दैट ओके? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपकी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, ये लिस्ट आपका ऑब्जेक्ट है एज अ इटरेटर, और यहां से आपने एक लिस्ट पास करी है। ठीक है, तो वो लिस्ट आपकी कहां पहुंची? यहां पर। उसके बाद एक एक आइटम्स आपके यहां पर आते रहेंगे, यानी कि जो भी आपका लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना है वो यहां से क्या होगा, निकलता जाएगा और एक एक आइटम आपका यहां पहुंचेगा, और फिर उसके बाद आप उसका क्या करते जा रहे हो, स्क्वायर करके प्रिंट कराते जा रहे हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो दिस इज कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो चलिए एक 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 प्रोग्राम और बनाते हैं। जस्ट लिखिएगा राइट अ प्रोग्राम। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल प्रोग्राम, ओके? एंड जस्ट सिंपल प्रोग्राम इज दैट write a program to input a number from user and print its table using lambda expressions. Yeah. Now try to solve this question using lambda expression. फटाफट जल्दी से। Yeah, ma'am. Okay, it's okay. मैम प्रॉब्लम ये इसी चीज की है ना कि अगर सब इसी तरीके से टेक्निकल इश्यूज बताएंगे तो फिर तो कोई भी अनवांटेड पर्सन ज्वाइन कर सकता है ना। खैर अभी के लिए अलाउ कर देंगे मैम, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी। मैम लेट हिम ज्वाइन, लेट हिम ज्वाइन। If somebody finds any technical issue and he is supposed to logged out from the session, just go through the videos, go through the YouTube videos which I already shared all you with you all on your Google Classrooms along with your YouTube channel Universal Ujjain. तो आप वहां पर जाके आप सेशन को अटेंड कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल। यस गाइस, अटेंडेंस के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये जरूरी है। अटेंडेंस बहुत जरूरी है सभी लोगों के लिए। यस गाइस, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन everyone. I want the answer from every student. Okay, Vishal, Vikrant, Shubham, Yogen, Sakshi, Vikas Thakur. Okay, yeah, okay. Is that correct answer, Vishal? Vikas, sorry. Is that correct answer? Is that correct? Okay, Vikas is saying this is the code. Okay, Vikas, right, you are right.
So if you want to print this one in the proper format, then you can also print it. तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा होपफुली कि अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशन करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप एक लाइन में पूरा पूरा कोड लिख लेते हो. Isn't it that nice? तो आपको बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस नहीं बढ़ता है, लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है और आपका कोड भी परफेक्ट दिखता है. यस और नो? श्रुति, साक्षी, शिवांगी, यस है ना? तो आपका कोड देखिए ऑटोमेटिकली कितना छोटा हो गया. एक फंक्शन जहां बनाते, डेफ क्रिएट करते, 3 लाइन लिखते, प्रिंट कराते, लूप लगाते, वो काम एक ही लाइन में आपने प्रिंट करवा दिया और सब कुछ हो गया. यस और नो? तो आपका लैम्डा एक्सप्रेशन कितना इजी होता है, इसी को बोलते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग. जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है उसके ऊपर ध्यान दिया गया और उसके थ्रू आपने सारी चीजें एग्जीक्यूट करवा दी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लैम्डा एक्सप्रेशन. क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हमने लैम्डा एक्सप्रेशन देख लिया. नेक्स्ट है आपका पाइथन डेकोरेटर्स. तो पाइथन डेकोरेटर्स क्या है? पाइथन डेकोरेटर्स के लिए हमें यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डेकोरेटर्स क्या है. ठीक है, तो पाइथन डेकोरेटर्स आर वेरी इजी, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें भी. पाइथन डेकोरेटर्स में बेसिकली ऐसे समझ लीजिए इन शॉर्ट के तौर पे कि ये किसी फंक्शन को, यानी कि ऐसे समझ सकते हैं किसी भी कॉलेबल के लिए रिटर्न करता है कॉलेबल. ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को रिटर्न करता है. यहां पर बात समझिएगा, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से समझना है. ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी फंक्शन को रिटर्न करता है. आई एम नॉट सेइंग ऑब्जेक्ट या वैल्यू. ठीक है, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है कि एक ऐसा कॉलेबल फंक्शन जो किसी दूसरे कॉलेबल फंक्शन को रिटर्न करता हो, वो डेकोरेटर कहलाता है या पाइथन डेकोरेटर फंक्शन कहलाता है. ठीक है, ये बिल्कुल आप उसी तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो या एक फंक्शनैलिटी देना चाहते हो, कुछ भी देना चाहते हो, तो जब आप उसको गिफ्ट करते हो तो वो गिफ्ट बढ़िया सा रैप करके देते हैं. ठीक है, उसको बढ़िया सा प्रिटी सा बना के देते हैं ताकि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे. तो उससे क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है. जो नॉर्मली देखने में था और जब उसके ऊपर आपने रैपिंग कर दी तो अब वो देखने में कुछ और लग रहा है. यही होता है डेकोरेटर. नाम से पता चलता है डेकोरेट करना, यानी कि नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो ऑर्डिनरी तरीके से काम करता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कुछ और चीज अप्लाइड कर देते हो, यानी कि एक नई फंक्शनैलिटी असाइन कर देते हो, तो वो अपने फंक्शनैलिटी तो चलाता ही चलाता है, उसके ऊपर भी वो कुछ असाइन और करता है. ठीक है, तो वो रीअसाइनमेंट हो जाता है. ठीक, तो ये होता है आपका फंक्शन, वो पाइथन डेकोरेटर्स. So here you can see the decorator function added some new functionality to the original function. This is similar to packing a gift. ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम किसी गिफ्ट को पैक करते हैं. The decorator as a wrapper. तो वो डेकोरेटर जो होता है वो एक रैपर की तरीके से काम करता है. ठीक, the nature of the object that decorated actual gift inside. जो अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो अंदर ऑब्जेक्ट रखा है वो नहीं बदलेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा, does not alter. But now it looks pretty since it got decorated. क्लियर, समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत हो बताइए. आप लोगों को आपके बर्थडे गिफ्ट्स मिले होंगे, तो बर्थडे गिफ्ट जब मिले होंगे तो वो एक बढ़िया से बॉक्स के अंदर ऊपर एक कवरिंग लगा के, रिबन रिबन लगा के, टैग लगा के दिया गया होगा, या जनरली हम लोग किसी को देते हैं. यस और नो? तो उस रैपिंग करने से अंदर का ऑब्जेक्ट क्या बदल जाता है? यस और नो? टेल मी. नहीं. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं चेंज होता, वो चीज अंदर की अंदर सेम ऑब्जेक्ट ही बनी रहती है. लेकिन जब आप उसके ऊपर कवरिंग लगा देते हैं या उसके ऊपर रैपर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर बढ़िया से रिबन लगा देते हैं, तो वो देखने में और खूबसूरत लगने लगता है और प्रिटी लगने लगता है और अट्रैक्टिव लगता है. तो वही चीज पाइथन डेकोरेटर्स कहलाती है. ठीक है, तो ये समझ में आया.
तो पाइथन डेकोरेटर बनाने के लिए क्या होता है, पाइथन डेकोरेटर बनाने के लिए जैसे आपने कोई एक फंक्शन बनाया मेक प्रिटी, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया और फिर वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के अंदर पर चला जा रहा है, किसी दूसरे अंदर को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो एक कॉलेबल को कॉलेबल रन करा रहा है, एक कॉलेबल बनाया, उस कॉलेबल को कोई दूसरा कॉलेबल रन करवा रहा है, एग्जीक्यूट या रिटर्न करवा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाता है पाइथन डेकोरेटर्स। डोंट वरी, आई विल शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन योर गूगल क्लासरूम, ठीक है। तो ये जो थ्योरी लिखी हुई है ये हम आपको उसके साथ में शेयर कर देंगे, ठीक। तो पाइथन डेकोरेटर्स के लिए यहाँ पर हमें क्या यूज करना होता है, वी हैव टू यूज @ सिंबल अलोंग विद द सेम नेम ऑफ द डेकोरेटर, ठीक है। जहां पर भी जो भी फंक्शन बना होता है उस फंक्शन के साथ में, सॉरी एक सेकेंड, फंक्शन के साथ में हमें क्या करना होता है, डेकोरेटर लगाने के लिए @ प्लेस कर देना होता है, तो वो क्या हो जाता है, डेकोरेटेड हो जाता है या इंटरेस्टिंग दिखने लगता है और अच्छा देखने लगने लगता है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड पाइथन डेकोरेटर्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यस और नो? श्रुति, साक्षी, रक्षा, विशाल, विक्रांत। या तो अब इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं, और इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर एक पाइथन डेकोरेटर बनाया हुआ है। तो पहले आप इस पाइथन डेकोरेटर को रन करा के देखो, इस विदाउट, ये है विदाउट डेकोरेशन के थ्रू है, तो क्या आउटपुट आता है, और जब इसके बाद हम इस पर डेकोरेशन लगाते हैं तो क्या होता है। तो जल्दी से इसको ट्राई ट्राई करिए और बना के बताइए जल्दी से फटाफट। I want answer from each and every student. I want the answer from each and every student, please.
Yes, Vikrant. Yes, Vikrant. Correct answer. External function is printed. Correct. Yes, yes, yes. तो अगर आप यहां पर देखो तो जब आपने विदाउट डेकोरेटर्स का यूज किया तो ये एक ही फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब अपने आप को ही कॉल कर पा रहा है, यहां तक तो जा ही नहीं रहा। जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। तो जब ये कॉल कर रहा है तो ये केवल एक्सटर्नल फंक्शन को ही कॉल कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पर डेकोरेटर लगा देते हैं तो डेकोरेटर का काम क्या होगा, यहाँ पर ये हमने लगाया RES इज इक्वल टू एक्सटर्नल आउटर देन एक्सटर्नल। तो जो एक्सटर्नल बना हुआ है मतलब हम इसको कॉल कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हम डेकोरेट करना चाहते हैं ताकि वो इसको भी कॉल कर सके। तो आउटर के अंदर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल को एज एन ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया, अब ये फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, यहां पर देखना, यहां पर आपको ध्यान से समझना है, फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन। आउटर ने इस फंक्शन को कॉल किया एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आउटर ने जब कॉल किया तो वो यहां पर लेके आ रहा है, लेकिन किसको लेके आ रहा है, इसको लेके आ रहा है यहां पर। तो वो पहले जब रन कराता है तो एक्सटर्नल फंक्शन है, लेकिन जब वो यहां पहुंच रहा है तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, इनर। तो पहले आउटपुट जो आएगा वो आएगा इनर फंक्शन, फिर उसके बाद आएगा व्हाट, एक्सटर्नल। वो इस वजह से, क्योंकि रीजन ये है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है तो वो आपको यहां पर भेजे दे रहा है, मतलब अपनी जो रिटर्न्ड वैल्यू है वो यहां पर रिटर्न होती है, और RES कहां पहुंचता है, इस जगह पर। ठीक है, ये जो RES है ये इसको कॉल कर रहा है। तो अब क्या हुआ, इनर फंक्शन पहले कॉल होगा और फिर यहां पर क्या होगा, प्रिंट करेगा। यहां पर देखो इनर हमारा फंक्शन है, लेकिन यहां पर इसने रिटर्न किया ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि आपने यहाँ पर रिटर्न किसको कॉल किया था, एक्सटर्नल को, तो एक्सटर्नल भी प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर इसने एक्सटर्नल भी प्रिंट किया। तो ऑब्जेक्ट नहीं बदला, अंदर का ऑब्जेक्ट नहीं चेंज हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फीचर लग गया, किसका, इनर फंक्शन का। तो विदाउट अगर डेकोरेटर चलाओगे तो ये चलेगा। ठीक है, विदाउट अगर यह चलाओगे तो ये चलेगा, लेकिन अगर उसके ऊपर रैपिंग कर देंगे, यानी कि एनोटेशन लगा देंगे @ का या एक्सटर्नल उसका डेकोरेटर का, तो इनर फंक्शन भी आपका चलता है। ठीक है, तो इसको रन करा के देखिए जरा। तो आपका पहले इनर फंक्शन आएगा, फिर एक्सटर्नल फंक्शन दिखेगा। यस शिवांगी, तो आपने कुछ किया नहीं है, देखो आपने कुछ बड़ा काम नहीं किया, आपने केवल क्या किया है, यहां पर ये जो एक्सटर्नल कॉल कर रहे थे, इस एक्सटर्नल को ना कॉल करके हमने एक ऑब्जेक्ट बना के उसके थ्रू एक फंक्शन को कॉल किया। तो पहले वो इनर फंक्शन को कॉल कर रहा है, फिर एक्सटर्नल वाले को कॉल कर रहा है। या करेक्ट आंसर शुभम, आंसर सही है आपका। तो यही होता है आपका डेकोरेटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं बदला, ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन एक नया फीचर एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो अब अगर यही जो फंक्शन डेकोरेटर है, इसको अगर हम इन शॉर्ट लिखना चाहते हैं, मतलब इसको हम और छोटा करना चाहते हैं कि ये लाइन भी हमें ना लिखनी पड़े, तो इस लाइन को ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, @ लगा देते हैं। तो यहां पर हमने @ लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने एक @ लगा दिया और @ के थ्रू रन कराया। तो आप ऊपर वाला हटा के उसके ऊपर @ लगा और फिर रन कराओ, देखो अभी भी आपका यही आंसर आएगा, इनर पहले चलेगा फिर एक्सटर्नल चलेगा। यस और नो। तो जो ऊपर वाला बनाया था उसको हटा के एक्सटर्नल के ऊपर आउटर लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली डेकोरेट हो जाएगा। तो फंक्शन रिटर्न हो गया है। यस प्रतिभा, समझ में आया कि नहीं, किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो तो अभी भी बता दीजिए, किसी को भी, एनीबडी, कोई भी। स्वागत, गॉट इट, विक्रांत, योगेंद्र, विशाल, विकास, श्रुति, साक्षी, प्रतिभा। So I hope you understand this Python decorators. Yes or no? Okay. तो
नाउ अब इसी का एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई पैरामीटर्स है, फंक्शन के साथ में कोई पैरामीटर्स हमने यूज किया, और पैरामीटर्स अगर हम यूज करवा के तब देखते क्या होता है। तो पहले आप एक बार ये प्रोग्राम बनाओ, छोटा सा ये वाला बनाओ, इसको ट्राई करो क्या आता है, इसको रन कराओ। सभी लोग इसको ट्राई करें, क्या आंसर आ रहा है बताएं जल्दी से। आई होप आप लोगों के पास एक एरर आ रही होगी, जीरो डिवीजन एरर। यस करेक्ट योगेन, वेरी गुड। जीरो डिवीजन एरर आ रही है। क्यों जीरो डिवीजन एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर आप 5 को 0 से डिवाइड कर रहे हो। बेटा इंफिनिटी नहीं आएगा, इंफिनिटी इंफिनिटी कहां से हो सकता है, जीरो डिवीजन एरर आएगी। पाइथन को तो इंफिनिटी पता ही नहीं होता ना दीपक, इसीलिए तो वो एक्सेप्शन फेंकता है। ओके यस साक्षी, जीरो डिवीजन एरर। तो जीरो डिवीजन एरर जो होता है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जावा में होता है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। ठीक है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन एक होता है ना। तो यहाँ पर जो पाइथन शो करता है वो आता है जीरो डिवीजन एरर। तो अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं भाई ये एरर मत दिखाओ तुम, ठीक है, ये एरर मत दिखाओ, हमें एक मैसेज शो कर देना। मतलब होता क्या है देखो, अगर मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपने पाइथन में कोड किया और कोड में कुछ ऐसा आपने कर दिया कि भाई वहां पर एक फंक्शन है और फंक्शन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब डिवाइड करते समय डेवलपर ने सॉरी कोड तो सही बनाया, लेकिन जो क्या कहते हैं क्लाइंट है जो उसको टेस्ट कर रहा है, तो उसने जानबूझ के जीरो पास कर दिया, या टेस्टिंग करते समय जीरो पास किया गया, तो अब वो फंक्शन तो ये दिखा देगा ना जीरो डिवीजन एरर, तो आपका प्रोग्राम तो क्रैश हो गया। यस और नो? हाँ शुभम सही है, एरर आ रहा है ना, बिल्कुल। तो अब अगर आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है तो कोई आपके सॉफ्टवेयर को कोई परचेज करेगा? यस और नो बताएं, कोई परचेज करेगा? यस 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 एवरीवन, यस, जो भी आंसर दिया जिसने, कोई नहीं परचेज करेगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपने प्रोग्राम में ऐसे क्या चीज इंप्लीमेंट कर दे जिससे वो एक्सेप्शन ना दिखाए, कोई मैसेज प्रिंट कर दे या मैसेज थ्रो कर दे, ठीक है, कि भाई ये एक्सेप्शन है या यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये मत करो। ठीक है, हाँ तो अभी हमने एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे ना उत्कर्ष, अभी हम उसको थ्रो नहीं करवाएंगे, अब इसमें हम कुछ और करें। थ्रो तो एक कीवर्ड होता है, हम कीवर्ड की अभी बात ही नहीं कर रहे, हम कुछ और करवाना चाहते हैं। ठीक है, तब हम यहाँ ना ना संदीप बात समझो, उत्कर्ष संदीप बात समझो, हम यहाँ पर थ्रो और कैच और ट्राई ये सब कुछ नहीं लगाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली ये खुद अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे कि कब उसके पास वैल्यू जीरो आई। तो जैसे ही वैल्यू जीरो आई वो ऑटोमेटिकली मैसेज प्रिंट कर दे कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या मैं डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो वहां पर हम पाइथन डेकोरेटर्स का यूज करते हैं। तो पाइथन डेकोरेटर्स क्या करते हैं, पाइथन डेकोरेटर्स बेसिकली यही चीज यूज करते हैं कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपने फंक्शन बनाया स्मार्ट डिवाइड के नाम से, और आपने एक फंक्शन दिया फंक, ठीक है, और उसके अंदर एक और फंक्शन बनाया इनर, इनर के पास दो वैल्यूज दे दी a कॉमा बी, और ये मैसेज दे रहा है a एंड b, मतलब ये डिवाइड करेगा a और b को। ठीक है, अब अगर b की वैल्यू जीरो होती है तो फंक्शन तुरंत वैल्यू रिटर्न कर देगा, यहां से खट से वैल्यू रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न कर देगा? उप्स कैन नॉट डिवाइड। तो कहीं हमने ट्राई कैच लगाया, कहीं हमने ट्राई कैच लगाया,
नहीं ना। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो ये फंक्शन यहां पर तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर ये फंक्शन बन गया। तो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ठीक है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करके रिटर्न करवा रहा है। तो फंक्शन उसने कॉल किया और कॉल करने के बाद रिटर्न किया, रिटर्न करने के बाद जहां पर जो आपका वो आया, आंसर आया, वो यहां पर डिवाइड के पास पहुंचा। ठीक है, तो आपके डिवाइड फंक्शन को फंक्शनैलिटी हमने ये दे दी कि अगर आपके पास नॉर्मल वैल्यूज आती हैं तब तो मैसेज ये दे देना, लेकिन अगर आपके पास जीरो कहीं पर भी आ जाए तो मैसेज आप ये दे देना। अब रन कराओ इसको, देखो बनाओ, देखो आंसर क्या आता है। फटाफट जल्दी से बनाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। फटाफट जल्दी से बनाइए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। सभी लोग ट्राई करिएगा, योगेंद्र, विशाल, विकास, सुमित, स्वागत, उत्कर्ष, संदीप, शुभम, रक्षा, शिवांगी, श्रुति, सभी लोग ट्राई करके बताएंगे आंसर। Yes, Utkarsh, you are right. You can't divide. Oops, cannot divide. Yes. तो अगर आप पहला वाला रन कराएंगे, यानी कि पहला आर्गुमेंट अगर पास करेंगे तो आपको ये दिखाएगा। ठीक है, कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये पास किया, ठीक है, तो ये पास करने पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास करने पर, यानी कि 4,0 पास करने पर आंसर आ जाएगा oops कैन नॉट डिवाइड। दैट स्ट्रिंग विच प्रिंटेड, व्हाट इज मीन बाय उत्कर्ष, इसका क्या मतलब है दैट स्ट्रिंग विच प्रिंटेड? यस, हाँ वो ठीक है। बाकी विक्रांत, विशाल, आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है? शिवांगी, श्रुति, प्रतिभा, तो सभी लोगों ने ट्राई करके देखा? तो कहीं पर भी हमने ट्राई कैच लगाया है? जो अभी आप लोग बता रहे थे कि हम ट्राई कैच लगाएंगे, तो क्या हमने कहीं ट्राई कैच लगाया? लेकिन ये आंसर हमारा सही दे रहा है कि नहीं, कि अगर आप 0 पास करोगे तो क्या होगा, डिवाइड नहीं करने देगा, है ना? तो ये कहलाता है पाइथन डेकोरेटर, यानी आपके फंक्शन को एक नई फंक्शनैलिटी दे दी है। ठीक है, एक नई फंक्शनैलिटी, यानी कि एक नया लुक एंड फील दे दिया, जिसके थ्रू फंक्शन खुद ये डिसाइड कर लेता है कि उसको डिवाइड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी ट्राई एंड कैच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आप फंक्शन में भी ये फंक्शनैलिटी डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटिंग अ पाइथन फंक्शन। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? किसी को ऐसा कोई तो हो जो किसी को नहीं समझ में आया हो आज का टॉपिक्स, लैम्डा एक्सप्रेशन एंड ऑल? चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, लिखिएगा। राइट अ प्रोग्राम, फटाफट जल्दी से करो। राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम, write a program to create, I'm just writing over here, write a program to create a dictionary
Dictionary of a student of having some marks in five distinct subjects. In five distinct subjects. Find find the subject of highest marks and lowest marks. ये क्वेश्चन है आपका. Write a program to create a dictionary of a student of having some marks in five distinct subjects. ठीक है? In five distinct subjects, find the subject of highest marks नहीं होगा, mark होगा, highest mark and lowest mark. जल्दी से करिए, आपके पास अभी है 15 मिनट है, जल्दी से करिएगा. Try to solve this question फटाफट. Everyone, I want answer from everyone student. कोई कॉपी पेस्ट नहीं, नेट से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा. अपना दिमाग लगाइए और अपने दिमाग से सॉल्व करके देखिए. आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है.
Okay guys, anybody has done the question? किसी ने ट्राई किया? Anybody got the answer? Anybody got the answer? ओके गाइज, आप लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है, वहां पर आपको स्लाइड्स मिल गई होंगी ना? यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दिया है हमने, तो वहां पर आप यूट्यूब लिंक पे भी जाके शेयर देख सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स अब आपको मिल जाएंगे, वहां पर असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, और जल्दी आप लोगों को अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देने होंगे। ओके गाइस, तो किसी का आंसर आया? Utkarsh has tried question. Let's see what he does. बेटा आपने यहाँ पर उत्कर्ष डिक्शनरी क्यों नहीं बनाई है? यहाँ पर डिक्शनरी नहीं है ना? आई वॉन्ट अ डिक्शनरी, पाइथन डिक्शनरी। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। I need a dictionary where having highest marks and lowest marks. तो हाईएस्ट मार्क्स का आपको सब्जेक्ट प्रिंट करना है और लोएस्ट मार्क्स का सब्जेक्ट प्रिंट करना है। आप चाहो तो यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं।
ओके गाइस, आप लोगों को इसको ट्राई करके देखिएगा, ठीक है? आप लोग इसको ट्राई करते रहिएगा, होपफुली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जस्ट आई वांट अ रेट आउट ऑफ 5. Just give me a feedback of today's session. Okay, thank you Sanskriti, Deepak, Raksha, Prakhar, Shruti, thank you. Okay, Vikrant, Payal, Vishal, thank you everyone. Pratibha, okay, thank you Pratibha, thank you very much. Tanmay, Pooja, thank you Sakshi, thank you Sumit. So that's all from my side today, guys, and we'll continue on tomorrow with some more interesting topic on Python. And that's all from my side, and enjoy your day. Happy Eid to everyone. Happy Eid to everyone. Thank you everyone. Thank you Sumit, thank you Raksha, thank you Yogen, thank you Vikrant, thank you Sanskriti, thank you Swagat, thank you Vikas, thank you Swagat. शुभम नंबर क्या करोगे? शिवांगी, thank you Shivangi. You're all nice people. Yeah, you can share at any time. You can, आप Google Classroom पे डाल दो, वहां पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं. I'll get it back to you. Google Classroom पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां से बात कर सकते हैं. हाँ, बता तो रहे हैं शुभम, आप Google पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा. It will be answered. It will be answered. Anybody having a doubt, just put the question on Google Classroom. Okay guys, thank you. That's all from my side. Thank you. Have a nice day. Thank you.